Good morning, boys and girls. Let us try to understand Inkling from the Dark. This is the title of the poem and it is meant for 12th class students. Remember, boys and girls, the poem is written by Rahman Rahi, a Kashmiri legend, a literary legend, I mean, and the poem is translated by Ghulam Rasool Malik, Professor Ghulam Rasool Malik. Okay. Now this is simply for your information. Today we will simply try to understand the poem, and in next lecture we will understand who is Rahman Rahi. We will try to understand him, and then we will see other things as well, right? Okay, now see, the poem has three stanzas, and the first stanza is displayed on your screen fully. We can now see this. Yesternight my sleep driven off, and the thread of my fancy slit. I espied an eagle in the wild shadows of my mind. On its beak, in the same old fashion, smoldered the blood of the dove, whose feathers were shed by hilltops into the atmosphere. Turning my head on the pillow, I sighted a deep, dark chasm, and rose and leaned my back against the wall, with the cool of the winter in the marrow of my breast. Dear friends, Raman Rai is, he has written this poem in Kashmiri, and then it is translated into English by Professor Ghulam Rasool Malik, right? And before, you know, going into the poem, I will tell you that, you are not allowed to break phrases into pieces. If you are splitting phrases, what will happen? You won't get the exact meaning what is to be intended. ठीक है, यानी वो मीनिंग आप नहीं ले सकते अगर आप फ्रेज को ब्रेक करते हैं पीसेस में. यू अंडरस्टैंड? इस वजह से दिस पोएम हैज़ a number of words which are important with regard to your vocabulary, and और दूसरी बात जो ये है कि कुछ फ्रेज़ हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट? और पोएम को अंडरस्टैंड करने के लिए ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारी जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी डीप होनी चाहिए इस पोएम के हवाले से. अब देखिए आप, ये आपकी लास्ट पोएम है 12th क्लास स्टूडेंट्स के बच्चों की, और इस पोएम को देखने की हम कोशिश करेंगे. ये देखिए आप. यस्टर नाइट माई स्लीप ड्रिवन ऑफ एंड द थ्रेड ऑफ माई फैंसी स्लिट. अब देखिए पहली लाइन, यस्टर नाइट, ठीक है. अदरवाइज जिस किताब देखते हैं यस्टर नाइट का मतलब है लॉस्ट नाइट, ठीक है. You say yesternight, you can replace yesternight and you can say sometimes lost night. But this is the speciality of the, of Professor Ghulam Rasool Malik. This is the deliberate attempt. He has used the word yesternight instead of lost night. ठीक है. Driven off, if you see the line, the phrase, it simply means to remove or that is gone, right? Yesternight my sleep driven off. और अब यहाँ से आगे देखिए आप, the thread of my fancy slit, right? The thread of my fancy slit. Slit is something that is torn, जिसको हम T-O-R-N, torn. Torn का मतलब है किसी चीज़ का फट जाना, रैग हो जाना, और slit is considered to be very small opening, in other words. छोटी ओपनिंग जो सुई होती है ना, सुई की जो ओपनिंग होती है, that is again considered to be slit. लेकिन अब आपने यहाँ पे थोड़ा ध्यान में देखना पड़ेगा कि व्हाट डज द लाइन सजेस्ट, क्या मतलब है इसका, द राइटर का, पोइट का. व्हेन ही सेज यस्टर नाइट माई स्लीप ड्रिवन ऑफ, ऑब्वियसली ओके, लास्ट नाइट व्हाट हैपन्स, इसकी जो नींद वगैरह थी वो सारी की सारी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, ख़राब हो गई. क्यों? एंड द थ्रेड ऑफ माई फैंसी स्लिट. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रेज, द थ्रेड ऑफ माई फैंसी स्लिट, द थ्रेड ऑफ माई फैंसी स्लिट. रिमेंबर, इसको आप एज ए होल एंटिटी ले लेंगे यहाँ से,
द थ्रेड ऑफ माई फैंसी स्लिट। अदरवाइज फैंसीज हम ड्रीम को कहते हैं, ठीक है, ड्रीम्स जो होती हैं उनको कहते हैं फैंसीज। लेकिन आपके लिए ज़्यादा मौजूद रहेगा जिसको तो आप इस द थ्रेड ऑफ माई फैंसी स्लिट को ले लेंगे। इट सिंपली मीन्स his dreams, the poet's dreams, were disturbed by thoughts. There is not just one thought, there are number of thoughts. ठीक है, एक ख्याल के बाद दूसरी ख्याल, दूसरे ख्याल के बाद तीसरा ख्याल. He has number of thoughts. He has, in other words, he has number of dreams. He is dreaming number of dreams, right? और उस वजह से क्या हुआ? And remember, all these dreams are not considered to be, जिनको आप बोलेंगे बहुत अच्छी ख्वाब देखी, ऐसा नहीं था. That's why my sleep driven off. Remember, my sleep driven off. फर्स्ट पर्सन नरेटर, ठीक है, ये पोइट ने अपने बारे में लिखी है. माई स्लीप ड्रिवन ऑफ, मैं इसकी नींद ख़राब हो गई गुलाम रहमान राही की. एंड द थ्रेड ऑफ माई फैंसी स्लिट, क्या हूँ? बिकॉज हिज ड्रीम्स वेयर डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ वॉट? बाई हिज थाट्स. इसकी सारी ड्रीम्स जो थे, सारे के सारे ख्वाब डिस्टर्ब हो गए. क्योंकि क्या हुआ? बहुत सारे रेगुलर थॉट्स इसमें आ गए, ठीक है, अजीब अजीब तरीके के ख्वाब आ गए, उसकी वजह से इसकी नींद ख़राब हो गई. आइडिया एक्चुअली लाइन में ये है, ठीक है. अजीब अजीब तरीके के ख्वाब, डरावने ख्वाब. अजीब का मतलब यहाँ पे मेरा मतलब कहने का ये है, क्योंकि ये बड़े नेगेटिव नोट पे शुरू हुई है पोएम, ऑन ए वेरी वेरी पेस्टमेटिक नोट, उस वजह से क्या है कि अब इस रहमान राही की, द पॉइट की जो है, उसकी नींद उड़ गई. क्यों उड़ी? इस वजह से उड़ी कि उसको सीरीज़ ऑफ ड्रीम्स आ गए, उसके पास बहुत सारे ख्वाब आ गए, और उन ख्वाब ने डिस्टर्ब किया रहमान राही को, उसकी नींद को ख़राब कर दिया. अब देखो क्या हुआ. आई एस्पाइड एन ईगल इन द वाइल्ड शेडोज ऑफ माई माइंड. ठीक है, आई एस्पाइड. नाउ द पोइट एस्पाइड. एस्पाई, यू अंडरस्टैंड, ये लफ्ज़ जो है ESPIED, एस्पाइड, राइट. एस्पाइड का मतलब है देखना, देखने को हम कहते हैं एस्पाइड. यानी अगर इन अदर वर्ड्स सी का जो पास्ट होगा सा, यू कैन से सा. आई एस्पाइड एन ईगल. उसने देखा ईगल को इन द वाइल्ड शेडोज ऑफ माई माइंड. Dear friends, I said you need a lot of concentration. Now he saw what? An eagle. Eagle, अलामा इकबाल की शायरी में ईगल को तस्वर किया जाता है ए सिंबल ऑफ समथिंग गुड, ए सिंबल ऑफ एलिवेशन. इस तरीके का सिंबल ईगल को लिया गया है अलामा इकबाल की पोइट्री में. लेकिन यहाँ पर ईगल इज़ ए सिंबल ऑफ टेरनी, ईगल इज़ ए सिंबल ऑफ क्रूलनेस, ईगल इज़ ए सिंबल ऑफ, जिसको आप बोलेंगे बहुत जुल्म का सिंबल जो है, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन ईगल. रिमेंबर, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अलामा इकबाल एंड रहमान राही. देयर अलामा इकबाल, ही इज़ यूजिंग दिस सिंबल फॉर गुड, राइट. गुड के लिए क्यों? उसका अपना एक मोटिव है, क्योंकि ईगल जो होता है खुददार होता है, खुददार परिंदा है. ईगल काफ़ी ऊंचाई पे उड़ता है, और वो जवानों को कहता है कि आप सभी जितने भी जवान हैं, नौजवान, उनको आसमान की ऊंचाई पे की तरफ देखना चाहिए, उनके मीन्स बड़े लॉफ्टी होने चाहिए. ठीक है, ये तो अलामा इकबाल का पॉइंट ऑफ व्यू है. लेकिन यहाँ पे देखिए आप, इफ़ यू टॉक ऑफ द सैम्स ईगल, दिस सिम्बलाइजेज टेरनी, दिस सिम्बलाइजेज क्रूअलनेस. ठीक है, अब इसने क्या देखा? ही सा एन ईगल, उसने देखा एक ईगल. आई सेड एस्पाइड मीन्स सा एन ईगल इन द वाइल्ड शेडोज ऑफ अ माइंड. रिमेंबर, वाइल्ड शेडोज ऑफ अ माइंड. That means in your mind there are two types of shadows, bright shadows and wild shadows. When you say bright shadows, उसका मतलब है जो कुछ आपको दुनिया दिखेगी बहुत अच्छा दिखेगा, और आपका जो आइडिया होगा दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमिस्टिक. यू अंडरस्टैंड, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो सारा ऑप्टिमिस्टिक होगा. व्हेन यू से वाइल्ड शेडोज, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स समथिंग बैड. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी बैड ओमन. यू अंडरस्टैंड, यहाँ पर ये कंसीडर किया जाएगा. ईगल तो देखा इसने, कहाँ देखा? इन द वाइल्ड शेडोज ऑफ माई माइंड, राइट. इसके वाइल्ड शेडोज में, नॉट इसके गुड या ब्राइट शेडोज में. यू अंडरस्टैंड, तभी ये ईगल जो है, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी द सिंबल ऑफ टिरनी, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी द सिंबल ऑफ सिंबल ऑफ व्हाट यू से क्रूअलनेस. अब देखो, इस ईगल को अगर अलामा इकबाल देखेगा, ही विल सी इट इन द ब्राइट शेडोज ऑफ हिज माइंड. यू अंडरस्टैंड,
और इसने किस में देखा? इन द वाइल्ड शेडोज ऑफ माई माइंड। ये एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट ड्रीम। ही saw an eagle in the wild shadows of mind on its beak। क्या था ईगल की बीक में? बीक यू अंडरस्टैंड, चोंच को कहते हैं। इन द सेम ओल्ड फैशन देयर इज यू नो, एक स्टाइल है ईगल का, बहुत ही ख़तरनाक किस्म का, जिसको तो शिकार करता है। ये कहा जाता है कि 90 डिग्री ईगल डाउनवर्ड्स आता है अपने शिकार के ऊपर शिकार करने के लिए, और फिर उस शिकार के पास, मेरा मतलब है कोई चांस नहीं रहता है बचने का। ठीक, इस तरीके का शिकार करता है कौन? ईगल। अब यहाँ पे देखो इसने क्या देखा? ऑन इट इज बीक, ईगल की बीक में, इन द सेम ओल्ड फैशन, उसी स्टाइल में जो उसका अपना स्टाइल है, स्मोल्डर्ड द ब्लड ऑफ द डाउ। डाउ यू अंडरस्टैंड, उर्दू में हम इसको फाख्ता भी कहेंगे, यू कैन कॉल समटाइम्स कबूतर टाइप का कोई परिंदा, बट इट सिंबलाइजेज इनोसेंस। डाउ सिंबलाइजेज इनोसेंस। ठीक है, आप मेरी बात समझें। डाउ जो है, डाउ सिंबलाइज करता है इनोसेंस को। और स्मोल्डर्ड, यहाँ पे जो लफ्ज़ हुआ है यूज स्मोल्डर्ड, स्मोल्डर्ड इज कंसीडर्ड टू बी बर्नड, जला हुआ, लेकिन इट इज ऑल्सो कंसीडर्ड टू बी चॉक्ड। चॉक यू अंडरस्टैंड, यथा बना गांड लागुन, किसी चीज़ का गला गला गोंद देना किसी को, दैट इज कंसीडर्ड टू बी स्मोल्डर्ड, राइट? और यू कैन से स्टाइफल्ड। I have, I have these words at the bottom. I have given it for you so that you can easily understand. Now, smoldered you can understand at point 5. Burnt, to suffocate, to choke. Suffocate you understand. Suffocate भी हुआ जिस वक्त आपका दाम घुट जाए खुदा न खास्ता, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम suffocation हो जाना, ठीक है। तो अब क्या देखा इसने? On its beak in the same old fashion smoldered the blood of the dove। दैट मीन्स शिकार किया गया किसका? डाउ का। ईगल ने शिकार किया है डाउ का, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके का शिकार किया गया है, उसका गला गोंद दिया गया है। और कैसे? और फिर देखो कितना भयानक किस्म का शिकार। whose feathers were shed by the hilltops into the atmosphere। whose feathers were shed into the hilltops। उसके जो फीदर्स हैं, फीदर्स यू अंडरस्टैंड, जो उसके पर वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे दे वर शेड बाय हिल टॉप्स, सारी हिल के ऊपर पड़े हुए हैं इसके ये फीदर्स। यानी इतना खतरनाक किस्म का, इसके फीदर्स किसी एक जगह इकट्ठा नहीं है, बहुत जगहों पर फैले हुए हैं। क्यों? इन टू द एटमॉस्फेयर, इन द एंटायर एरिया, इन टू द एंटायर क्योंकि ईगल हमारा कहाँ पे होता है? बहुत ऊंचाई पे रहने वाला परिंदा है हमारा, वो काफ़ी हिली एरिया में रहता है, इस वजह से हिल टॉप्स के ऊपर उसने ख्वाब में देखा कि डाउ का शिकार किया है ईगल ने, लेकिन बड़ा भयानक किस्म का शिकार, बहुत ही ख़तरनाक किस्म का शिकार। और उसकी वजह से ये जो पहली ख्वाब थी, ये देखते ही रहमान राय की नींद उड़ गई। माई स्लीप ड्रिवन ऑफ, हिज स्लीप ड्रिवन ऑफ, ठीक है, रिमेंबर पहली लाइन, ठीक है। ये पहला ख्वाब था और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ख्वाब। अब आप एक खुद अंदाज़ा करें, इस तरीके की जिसका इंसान ख्वाब देखेगा, इज़ इट पॉसिबल दैट ए पर्सन विल वो अपने सिमिलर मूड में सोया रहेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैट्स वाई व्हाट हैपन्स टू रहमान राय, टर्निंग माई हेड ऑन द पिलो, नाउ ही टर्न्ड हिज हेड टुवर्ड्स अनदर वे, दूसरे साइड में दे, अब उसने अपना ये जो अपनी जो पोजीशन है उसको बदला, ठीक है। पोजीशन को इस वजह से बदला ताकि आप जिसको इंसान डिस्टर्ब हो जाता है तो उसी साइड में नहीं रह सकता, ठीक है। नाउ व्हाट ही सा, आई साइटेड ए डीप डार्क काज़म। रिमेंबर बॉयज एंड गर्ल्स, आई सेड CHASM। whenever you pronounce the word it is considered to be chasm, yeah, right, you understand, इसको K के साथ पढ़ना है। I sighted a deep dark chasm। और जो ही दूसरे साइड में मुड़ा रहमान राही, इसने देखा, चूंकि टाइम आपको पता है ये ख्वाब जो है रात के टाइम देखी गई है, राइट। इसने देखा आई साइटेड ए डीप डार्क काज़म। काज़म कहते हैं ओपनिंग को, किसी चीज़ की गैप जिसको बोलेंगे आप, एक तरीके का सुराख, एक तरीके का होल, यू अंडरस्टैंड, उसको कहते हैं काज़म। जिस वक्त रहमान राय दूसरे साइड में मुड़ा, उसने देखा एक बड़ी ओपनिंग, एक तरीके का सुराख उसको महसूस हुआ, ठीक है। उसने देखा सुराख, एक ख़तरनाक किस्म का सुराख। अब जिसको उसने ये सुराख देखा, ये भी कोई अच्छा ओमन नहीं था। एंड रोज़, और रहमान राय ऊपर उठा, एंड लीन्ड माई बैक अगेंस्ट द वॉल, और वो लीनिंग पोजीशन में बैठ गया, किसके साथ? वॉल के साथ, ठीक है।
दीवार के साथ। अब लीनिंग पोजिशन में, क्यों? क्योंकि अब ये दूसरी ख्वाब थी, जो ही साइड मुड़ा दूसरी साइड, अब देखा वहाँ पे दूसरी ओपनिंग, वहाँ पे घबरा गया, ठीक है। अब ऊपर उठा और बैठा किसके साथ? दीवार के साथ। और फिर देखिए आप एक इम्पॉर्टेंट बात, विद द कूल ऑफ द विंटर इन द मैरो ऑफ माई ब्रेस्ट, विद द कूल ऑफ द विंटर इन द मैरो ऑफ माई ब्रेस्ट। रिमेंबर, एक सीजन आपको पता चल गया, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी विंटर सीजन। चले कलान हमारी कश्मीर का, बिकॉज द पॉइंट बिलोंग्स टू कश्मीर, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ये चले कलान का सीजन है, उसमें ये वाक़या रामान राही के साथ हो रहा है। With the cool of the winter in the marrow of my breast. Now what he sees. Otherwise, if you talk of breast normally how can you say you have marrow. Marrow ज़्यादातर होता है कहाँ पर? हड्डियों में होता है marrow, bone marrow जिसको हम कहते हैं, राइट। जिस वक्त हम हड्डियों की बात करते हैं ना, तो हमें marrow महसूस होता है कहाँ पर? हड्डियों के अंदर, जिसको वस कहते हैं कश्मीरी में, वस। with the cool of the winter in the marrow of my breast. Now the idea is very simple कि इसको बहुत ज़्यादा सर्दी लगी थी। इन अदर वर्ड इसको आप बताएंगे, सर्दी इसकी हड्डियों में दाखिल हो गई थी, ये इसका तर्जुमा होगा। सर्दी इसकी हड्डियों में दाखिल हो चुकी थी, ये बहुत ज़्यादा फील कर रहा था ठंड, काफ़ी ज़्यादा सर्दी महसूस कर रहा था रहमान राही, ये विंटर चलेकलान की एक नाइट के दौरान, जिस वक्त रहमान राही के साथ ये वाक़या हुआ। तो ये पोइम उस हिसाब से लिखी गई है। अब डियर फ्रेंड्स, अब आप देखिए, इफ़ यू टॉक ऑफ द इंटायर स्टंजा, राइट, नाउ व्हाट हैपेंस इन द इंटायर स्टंजा, यू डिडंट हैव एनीथिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी गुड। द पोइम ओपन्स विद ए वेरी वेरी नेगेटिव नोट, वेरी नेगेटिव नोट आई शुड से, दैट्स व्हाई आई सेड एट ए पेसिमिस्टिक नोट, ठीक है। यू हैव नंबर ऑफ ड्रीम्स। पहली ड्रीम, ईगल versus what is called dove. I said eagle is considered to be the symbol of tyranny, the symbol of cruelness, and dove is the symbol from another side. If you see, dove is the symbol of innocence. innocent का शिकार किया जाता है एक जालिम परिंदे के ज़रिए से, ठीक है। हमेशा यही होता है कि innocent जो होते हैं उनका शिकार जालिम लोग करते हैं। innocent तभी हम उनको innocent कहते हैं जिसको तो उनके ऊपर जुल्म किया जाए, राइट। और फिर दूसरी जो ख्वाब उसने ऑलमोस्ट देखी, वो था ए डीप डार्क काज़म, तो उसकी वजह से और डिस्टर्ब हो गया पॉइंट, और अब वो उठा बैठा किसके साथ? दीवार के साथ। अब दीवार के साथ राहत की सांस लेता, लेकिन इन द मीन वाइल उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लगी थी चलेकलान में, एक्सट्रीम सर्दी होती है यहाँ पर चलेकलान में। दैट्स वाई ही हैज़ यूज्ड दिस फ्रेज, विद द कूल इन द विंटर इन द मैरो ऑफ माई ब्रेस्ट। द आइडिया इज़ कि सर्दी उसकी हड्डियों में दाखिल हो चुकी थी, ठीक है। तो ये था पहला स्टंजा। आई बिलीव कि आपने स्टंजा को अच्छी तरीके से पहचान लिया होगा, जांच लिया होगा। एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्दर सेकंड स्टंजा। दैट्स वाई मैंने आज उसकी बायोग्राफी के ऊपर बात नहीं की, बिकॉज आई नो कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एंड आई वांट टू फिनिश दिस पॉइंट, राइट। And in the next lecture, I will try my level best to make other things clear. But remember, boys and girls, the poem is very important. You can expect anything in the examination. That's why, I'm trying to make it very, very easy. In lucid terms, I am trying to make you clear, right? Okay. My lips froze dry as whispering reached me from outside the window. The snowflakes were sailing into the shelter of crevices. Not a mouse did creep from under the box or to the store cabinet. In the place of my upper garment, a cat hung by the hanger. Rubbing my eyes, I tried to pull the quilt up to my cold back. But oh, the concrete shook, and the cold, hapless ashes kissed my feet, while the owl hooted outside. Oh, woe to you, oh, woe! Fan would I have raised a cry of lament had my heart stood by me. Now, another stanza. Again, you won't have anything that is considered to be good. Now, see this. My lips froze dry as whispering reached me from outside the window. चूँकि कमरे का जो एटमॉस्फेयर है, दैट इज़ वेरी वेरी डिवास्टेटिंग, दैट इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर। यू विल इजीली अंडरस्टैंड। एक तो ड्रीम के ऊपर ड्रीम, और वो भी ख़तरनाक किस्म की ड्रीम्स, और दूसरी बात कमरे का इनसाइड टेम्परेचर, दैट इज़ अलार्मिंग, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है पॉइंट को। अब इन द मीन वाइल क्या हुआ? माई लिप्स फ्रोज ड्राई। लिप्स रहमान राही के पॉइंट के क्या हो गए? खुश्क हो गए।
ना व्हेन यू से लिप्स आपके ड्राई उस टाइम होते हैं वेयर यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी द साइन ऑफ गुड। जहाँ पे आप घबराए हुए हैं वहाँ पे आपके लिप्स खुश्क हो जाते हैं। जहाँ पे आपका सारे जिस्म वजूद जो आपका है उस वजूद में प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, आपके लिप्स उस टाइम ड्राई हो जाते हैं। और वही बात हुई किसके साथ, रहमान राही के साथ, द पोइट के साथ। एज विस्परिंग रीचड मी, अब क्यों हुआ ऐसा, ही सेज एज विस्परिंग रीचड मी, क्योंकि उसने विस्परिंग, यू अंडरस्टैंड, कोई चीज़ दैट हैज़ हैविंग लो साउंड, राइट। जैसे हम कहते हैं विस्परिंग टॉक्स, स्टॉप विस्परिंग टॉक्स, यानी ये काना फूसी बंद करिए, ठीक है, हल्की हल्की आवाज़ में बात करना। इस शख्स ने रात का टाइम, द नाइट टाइम इज कंसिडर्ड टू बी द टाइम ऑफ कामनेस एंड पीसफुल टाइम, राइट, जहाँ पे आपको ज़्यादा शोर शराबा और बाकी चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पे पोइट की जो लिप्स हैं वो ड्राई हो गई, क्यों, एज विस्परिंग रीच्ड मी फ्रॉम आउटसाइड द विंडो, उसने आउटसाइड विंडो यानी आउटसाइड क्या देखा, उसने ये महसूस किया कि वहाँ से कुछ साउंड आ रही है, हल्की हल्की साउंड, और साउंड बड़ी मिनिमम साउंड आ रही है, ये महसूस कर रहा है पोइट। अब किस चीज़ की साउंड है, वी विल ट्राई टू सी इट, राइट। द स्नो फ्लेक्स वेर सेलिंग इन टू द शेल्टर ऑफ क्रिविसेस। क्रिविसेस कहते हैं हम ओपनिंग को, छोटी जो ओपनिंग होगी, हल्की हल्की ओपनिंग, और स्पेशली जो खिड़कियाँ होती है, खिड़कियों में जो स्पेस होती है ना नीचे, खिड़कियाँ बंद करने के बाद उस स्पेस को हम कहते हैं क्रिविसेस। या जो आपके डोर्स होते हैं, डोर्स के नीचे की जो ओपनिंग होती है, वेरी स्लाइट टाइप ऑफ ओपनिंग, दैट इज कंसिडर्ड टू बी क्रिविसेस, राइट। एंड रिमेंबर इफ यू टॉक ऑफ स्नो फ्लेक्स, व्हेन यू से रैन फॉल होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, दैट्स व्हाई यू से रैन ड्रॉप्स, ठीक है। जिस वक्त आपका स्नो गिरता है और वो गिरने का जो स्टाइल है, दैट फॉल्स इन फ्लेक्स, दैट फॉल्स इन फ्लेक्स, स्नो फ्लेक्स। इन अदर वर्ड्स यू कैन से पीसेस, जिनको हम बोलेंगे क्या, स्नो फ्लेक्स होते हैं पीसेस ऑफ स्नो, जो क्योंकि बर्फ जो गिरती है वो पीसेस में गिरती है, और वही बात यहाँ पर है। द स्नो फ्लेक्स वेर सेलिंग, सेलिंग मीन्स कमिंग डाउन इन टू द शेल्टर ऑफ द क्रीविसेस। क्योंकि स्नो का एक मामला है, इट डजेंट फॉल वर्टिकल, ठीक है, इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाती है व्हेन इट फॉल्स, राइट। तो इस वजह से क्या हुआ, स्नो फ्लेक्स जो गिर रही हैं वो गिर रही हैं क्रिविसेस में, खिड़कियों के बाहर साइड में जो ओपनिंग होती है उसके ऊपर गिर रही हैं, और इस गिरने की एक आवाज़ आती है जो इस पोएम में दी गई है विस्परिंग, दैट इज कंसिडर्ड टू बी विस्परिंग साउंड, यू अंडरस्टैंड। अगेन सी बोथ द लाइन्स टेकन टुगेदर, माई लिप्स फ्रोज ड्राई एज द विस्परिंग रीच्ड मी फ्रॉम आउटसाइड द विंडो, ठीक है। The snowflakes were sailing into the shelter of the crevices. Snowflakes are simply falling, and they are falling, they are touching the crevices of the shelter by जो खिड़कियां हैं या बाहर जो भी एरिया है उसमें गिर रही हैं, और एक तरीके की आवाज़ आ रही है, और एक तरीके की आवाज़ महसूस कर रहा है पॉइंट, राइट। एंड देन सी, ये जो चिलेकलान होता है, व्हाट टाइप ऑफ सीजन इट इज़, नॉट ए माउस डिड क्रीप फ्रॉम अंडर द बॉक्स टू द स्टोर कैबिनेट, नॉट ए माउस डिड क्रीप। हालात ऐसे हैं, इतना सन्नाटा छाया हुआ है, नॉट ए माउस डिड क्रीप, इवन आपको माउस तक नहीं मिलता है, फ्रॉम अंडर द बॉक्स टू द स्टोर कैबिनेट। ज़्यादातर माउस जो होते हैं किसी भी सीजन में वो स्टोर रूम्स में पाए जाते हैं, स्टोर कैबिनेट, स्टोर रूम्स, ठीक है। देखो माउस का जो प्लूरल है दैट इज़ माइस, ठीक। रैट जो होता है दैट इज़ मेल, माउस इज कंसिडर्ड टू बी फीमेल, और माउस का प्लूरल जो है वो है माइस। यहाँ पर क्या मतलब है इसका, मतलब यहाँ पर ये है नॉट ए माउस डिड क्रीप, और माउस, मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बताऊँ कि माउस के जो दांत हैं ना वो एक साल में 6 इंच लंबे होते हैं, 6 इंच। इसी वजह से मजबूरी रहती है कि माउस को क्या करना पड़ता है, ये हमेशा काटता रहता है, जो चीज़ को सामने आती है उसकी कटिंग जारी रहती है, उस वजह से ये माउस के दांत अब फिर बरकरार रहते हैं। काटना, कटिंग करना माउस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसके दांत नीचे वाले जबड़े 6 इंच, ऊपर वाले जबड़े 6 इंच, ये आपस में ऊपर नीचे आके लॉक हो जाएंगे और उनको कोई खोल भी नहीं सकेगा, यू अंडरस्टैंड। लेकिन इसी वजह से माउस के लिए इंपॉर्टेंट है कटिंग करना। द आइडिया इज कि अगर कोई भी सीजन हो, यू विल फाइंड द माउसेज आर ऑलवेज देयर, राइट। इवन दे आर अट्रैक्टेड और ड्रॉन टुवर्ड्स व्हाट इज कॉल्ड स्टोर कैबिनेट, या जो स्टोर रूम होता है उसके पास होते हैं हमेशा। लेकिन सूरत हाल ये है कि इवन नॉट ए माउस डिड क्रीप, हमें तो कोई माउस तक भी नहीं मिलता है इस सीज़न में, कहाँ पर, स्टोर कैबिनेट वगैरह के साथ, कहीं पर वहाँ पर,
यानी किसी तरीके की मूवमेंट नहीं है। द आइडिया इज दिस। और ये मूवमेंट ना होना, सन्नाटा छाया हुआ है, द यू कैन से द सिचुएशन इनसाइड एंड आउटसाइड इज बहुत अलार्मिंग, यू अंडरस्टैंड। एंड देन ही सेज इन द प्लेस ऑफ माई अपर गारमेंट। अब देखो, दिस इज अनदर ड्रीम दैट ही इज ड्रीमिंग। इन द प्लेस ऑफ माई अपर गारमेंट, जहाँ पे ये अपर गारमेंट सिंपली मीन्स शेरवानी, यू कैन कॉल इट कोट, यू कैन कॉल इट क्लॉक, CLOAK क्लॉक, शेरवानी को कहते हैं। ये इस तरीके का जो अपर गारमेंट, वहाँ पे क्या देखा इसने, ए कैट हंग बाय द हैंगर। हैंगर नॉर्मली यू नो, उसने एक बिल्ली को देखा वहाँ पर हैंगर के ऊपर, इंस्टेड ऑफ जहाँ पे कोट होना चाहिए, जहाँ पे अपर गारमेंट होना चाहिए, वहाँ पे उसने एक बिल्ली को देखा। और जिसको कोई ऐसे देखेगा तो क्या होगा, और ज़्यादा घबरा जाएगा। आउटर एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल इन इनसाइड द हाउस, बोथ द सिचुएशन इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, ठीक है। ए कैट हंग बाय द हैंगर एंड देन जिसको उसने ऐसा देखा, रबिंग माई आइज। वाई ही इज रबिंग हिज आइज? बिकॉज ही डोंट बिलीव्स इट। उसको बिलीव नहीं हो रहा है दैट हाउ इट इज पॉसिबल द कैट इज हैंग बाय द हैंगर। हैंगर के ऊपर तो क्लॉक होना चाहिए, अपर गारमेंट होना चाहिए, लेकिन वहां पर एक बिल्ली खड़ी है, राइट? बिल्ली बैठी हुई है हैंगर के ऊपर। rubbing my eyes, that's why he is rubbing his eyes, because he does not he doesn't believe कि ऐसा है। I tried to pull the quilt up to my cold back, right? quilt रजाई को बोलते हैं, कमल को भी आप कह सकते हैं, हत्ता कि कमल को हम ब्लैंकेट वगैरह कहते हैं, रजाई के लिए क्विल्ट का लफ्ज़ यूज इस्तेमाल हुआ है। आई ट्राई टू पुल द क्विल्ट अप टू माई कोल्ड बैक, चूँकि ठंड का सीजन है तो पोइट ने क्या किया, पोइट ने रजाई को खींचा ऊपर की तरफ इन ऑर्डर टू कवर हिज एंटायर बॉडी, ठीक है, स्पेशली द बैक एरिया, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगी है, विच आई हैव ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट, राइट। और इतने में क्या हुआ, जिसको उसने ऐसा किया, बट ओ द कांगड़ी शुक, कांगड़ी ले रखी थी, कांगड़ी फायर पॉट जो कश्मीर में दिया जाता है, बट ओ द कांगड़ी शुक, कांगड़ी हिल गई। जिसको उसने ऐसा किया, कमल को ऊपर रजाई को ऊपर खींचा, द कांगड़ी शुक, कांगड़ी हिली, एंड द कोल्ड हैपलेस एशेस किस्ड माई फीट। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, राइट। मैंने किसी भी पोएटिक डिवाइस का आपको यहाँ पे इस वजह से तज़किरा नहीं किया, बिकॉज द लेसन विल गो वेरी वेरी लॉन्ग, राइट। और उसमें दूसरी बात यह है कि हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, इसको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस वजह से ये जो है पोएटिक डिवाइसेस इन द कमिंग लेक्चर्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर्स आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक देम क्लियर, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन हियर, व्हेन यू से see these lines are very interesting, but oh the कांगड़ी shook and cold, कांगड़ी shook, कांगड़ी हिली, and the cold hapless ashes, जो ashes कांगड़ी में थे, that were very cold, that were not warm, उन आग वगैरह नहीं थी, वो बिल्कुल हो चुके थे, बन गया था क्या, या थे सूर बना चु, राइट, एशेस बन गई थी। एंड व्हाट हैपन्स, वो गिर गई किसके ऊपर, बिस्तरे के ऊपर, किस्ड माई फीट, और उन्होंने किस किया किसको, रहमान राही के पाँवों को। ये इसी को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जिस वक्त आप इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को आप ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक देंगे। इनएनिमेट से मेरा मतलब है डेड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जब उनको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जाएं, दैट इज कंसीडर्ड टू बी पर्सोनिफिकेशन। और यहाँ पे देखिए आप, कोल्ड हैपलेस एशेस क्या हैं, दे आर कंसीडर्ड टू बी डेड एशेस, ठीक है, और दे आर किसिंग हिज फीट, he has used it, they kissed my feet. Now how it is possible they will kiss one's feet? Okay, वो वहाँ पे गिर गए, वहाँ पर एशेस, वो इसके फीट को टकराए, and the poet has deliberately used that they kissed his feet, right? This is personification used by the writer. Now see the entire idea in the line. The idea is very simple, कांगड़ी हिली और वो सारी की सारी गिर गई बिस्तर के ऊपर अंदर, ठीक है, और जितने भी वो एशेस थे वो जनाब अली इसके पाँव को टकरा गए, ठीक है। और इन द मीन वाइल द ओवल हूटेड आउटसाइड, अब देखो क्या, ओ वो टू यू, ओ वो, नाउ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग लाइन, ओ वाइल द ओवल हूटेड आउटसाइड, ओवल उल्लू को कहते हैं, एक ऐसा परिंदा, न परिंदा है न जानवर है, इट इज समवेयर इन बिटवीन द टू, राइट। इट इज कंसिडर्ड टू बी साइन ऑफ वेरी वेरी बैड, right? It's a bad omen whenever you find owl, and especially the
hooting of what is called the oval, right? And the oval hooted, and the oval hooted outside, and the oval hooted outside. Oh woe to you, oh woe, oh woe to you, oh. Okay, friends. While the owl hooted outside, oh woe to you, oh woe. Now see this, oh woe to you, oh woe. वो कहते हैं मुसीबत में पड़ने को, या किसी को कहते हैं जिसको हम कहते हैं लानत तुझ पर, यू नो, ये जिसके दिए अल्फाज इनका तर्जुमा किया जाए. व्हेन यू से ओ वो टू यू, यू इज़ कंसिडर्ड टू बी रहमान राय. दैट मीन्स ओवल एक एक अजीब किस्म का परिंदा, बहुत ही बदतरीन किस्म का परिंदा, इन अदर वर्ड्स आई शुड से, यू नो, बर्ड. एंड इट स्टार्टेड होटिंग आउटसाइड. वो चला रहा है, वो अपने आवाज़ दे रहा है, और आवाज़ इसको महसूस हो रही है पॉइंट को, ओ वो टू यू, ओ वो एक्चुअली लानत मलामत कर रहा है पॉइंट को. ठीक है. अब मसला है क्यों लानत मलामत कर रहा है. ये इस वजह से कर रहा है, ये इस वजह से लानत मलामत कर रहा है, ये इस वजह से इसको कोस रहा है. कोसने की वजह यह है कि बेसिकली परहैप्स ही हैज़ कमिटेड ए हीनियस क्राइम इन द पास्ट. Perhaps the poet has committed a heinous crime in the past, and because of that crime, he is, seeing number of dreams, and at the same time, he finds that owl is crying. It is crying, and it is, it is cursing the poet by the words when he says, "Oh woe to you, oh woe." You understand? ये बात होती है यहाँ पर ओवल की आप चलाने से ये मसला हो जाता है, right? Fan would I have raised a cry of lament had my heart stood by me. Fan would I have raised. Fan would I have raised. अब देखो जी, ये है फैन. आई हैव रेज्ड ए क्राई ऑफ लैमेंट. लैमेंट हुआ मुसीबत में, परेशानी में चलाना, यानी रोना इन अदर वर्ड्स. तो रहमान राही और द पॉइंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है. ही सेज ही हैज ऑलमोस्ट स्टार्टेड वीपिंग. ही हैज ऑलमोस्ट स्टार्टेड वीपिंग. वो बिल्कुल ऑलमोस्ट इतना परेशान हो गया पॉइंट दैट ही हैज स्टार्टेड वीपिंग. एंड देन ही इज ट्राइंग टू सी हिज हार्ट. हैड माई हार्ट स्टूड बाई मी, वेदर हिज हार्ट इज देयर और इट हैज गॉन. इट हैज ट्रांसेंडेड टू द ट्रांसेंडेंटल रियलिटी. यू अंडरस्टैंड. उधर ही है या चला गया, या पॉइंट का हिसाब किताब सब कुछ ख़राब हो गया. राइट. नाउ दिस इज द सेकंड स्टंजा. नाउ इन द सेकंड स्टंजास अगेन you won't see anything good that is happening in the poem, right? All these animals or birds which have been used by the writer, all these creatures in other words, or उतने अच्छे creatures में यूज नहीं हुए हैं. You have rat, mouse, you can understand. You have cat, और फिर देखो owl का hoot करना, you understand. और ये सब के सब जितने भी यूज हुए हैं, ये they are considered to be the omen of bad. You can't say they are considered the omen of good. Right. And I'm leaving you here. I will meet you in the next lecture with the last stanza of the poem. Right. Till then, goodbye.